सो गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज विशाल। तो सामने फ्रेम के अंदर एक और बाइक देख रहे हो, ट्रायम्फ की तरफ से आने वाली बॉनीविल T120 है, ब्लैक एडिशन है। तो सर कैसी रही बाइक ये वाली? I think this was my first big bike, ओके and I always wanted to get a Bonneville because Bonneville is one of those great names in biking. बिल्कुल सर। I think it's been around since 1976. So it is one of those storied names in bikes, you know. So this is my first bike, and I think I love this bike probably more than any other bike. So सर इससे पहले आप हाइनस चला रहे थे, हाइनस से आपने इस पे अपग्रेड किया आई गेस, जैसे आप बता रहे थे होंडा की। yeah. तो पावर में प्रॉब्लम में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम फील हुई इस बाइक को लेने के बाद आपको? No, I think it's actually very easy bike to ride. ये बहुत आसान है इस बाइक को चलाना. It's a bike है heavy, लेकिन it's a low bike. सर 350 सीसी के बाद आपने सीधा 1200 सीसी पे अपग्रेड किया। Yeah. T ट्विन भी आती है, T100 भी आती है, तो उनके बारे में नहीं सोचा? I think Bonneville was the name I wanted to go for. Bonneville is the bike that you have to have. Any bike enthusiast has to have a Bonneville in its collection. So I don't think it was much of a choice. सर ये ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चल चुकी है। Yeah. तो इस बाइक में कोई ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई इशू आपको फेल हो, मतलब फेस करने को देखा? वैसे कोई issue नहीं है. I think you have to understand the limitations of the bike. It's a street bike, right? Okay. It's a low street bike. You can't do off-roading in it. But you know, for a street bike on road, it's a wonderful bike. It has gobs of torque. बिल्कुल सर। Any gear, any RPM, you just turn the throttle and the bike just goes. क्योंकि रेड लाइट पे जब खड़ी होती है तो लोग देखते नहीं है इस बाइक को ना, कि बहुत बेसिक लगती है, नॉर्मल लगती है। Yeah, it flies under the radar, you know. So it doesn't count as a big bike. हाँ, बट जब ये निकलती है तो सब लोग देखते हैं ये क्या निकल के गया, क्योंकि पावर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। I mean the torque and the performance is. और ये कौन सा मॉडल है सर ये? This is a 2022 model, if I'm not mistaken. 2022 मॉडल है। तो पहले वाले इसमें मॉडल में सर काफी सारे चेंज इन लोगों ने कर दिए। सर ग्रैब गियर हटा दी, स्टैंड हटा दी हम। Yeah, center stand. I think that's one of the biggest problems with this bike. Doesn't have a center stand. हाँ सर, और सर पेड है सर, पैसे देके खर्च होता है। हीटेड ग्रिप्स भी हटा दी। नहीं, heated grips है मेरे पास। इसमें है सर? इसमें है। इसमें आपने लगवाई है? लगवाई है सर, वही मैं कह रहा हूँ ना, पहले आती थी ना, पहले 18 मॉडल 19 मॉडल तक इस बाइक के अंदर आती थी। तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता कि सर तीनों चीजें निकाल दी, चारों चीजें निकाल दी? I mean, since I didn't have the old bike, it's okay, you know. तो कैसे हो गए सर? ऑलमोस्ट लाख रुपए की एक्सेसरीज थी वो, ना करते हुए सेंटर स्टैंड हो गया, गैप ग्रिल हो गया, हीट ग्रिप्स हो गया, ये तीनों चीजें निकाल ली और पता नहीं क्यों निकाली है। इतनी कॉस्ट कटिंग भी मत करो। No, I agree. I think cost cutting shouldn't be done. I think they should give you more value as the bike. You know, I think you know to add value to the bike rather than take away from it. हाँ। But I'm okay with it. क्या बोल रहे थे आप? But बोलिए। I'm okay with it, and I'm fine. You know, as long as I get the grips, as long as you can put it, it's fine. सर टाइगर या बॉनीविल? It's a very tough question. तभी पूछा I सर don't think I can answer that question. I can say that Tiger अच्छा। for certain situations, absolutely, and Bonneville for certain situations, absolutely. I think Okay, both दोनों have की their अलग-अलग place सिचुएशन है। in the biking world, and और सर इसकी सर्विस वगैरह शोरूम पे कितने की होती है? I think it's about the same. I think 8,000 or 9,000 you have to spend. सिमिलर ही रहता है ऑलमोस्ट। Yeah, I think इसका भी I think second या third service अभी due है. So क्योंकि ये 6000 चल चुकी है, तो आप जब शोरूम पे लेके जाते तो मतलब सिमिलर सा ही सर्विस होता है, मतलब जो कॉस्ट आता है वो more or less same ही होता है। I think oil change and brakes and stuff like that. So yeah. But और कोई स्टोरी सर इस बाइक को लेके आप बताना चाहो अपनी तरफ से? I think the most fun I had on this bike when we had ridden this bike in Kerala. ओके, अब तो केरला भी लेके गए थे इसको? we had actually shipped this bike to Bangalore and we rode down to Kerala, and it was a trip from North Kerala to South Kerala, and you know we had probably about 1,000 kilometers of twisties, and it was so much of fun, you know, riding this bike with the power, you know, going around hairpin bends and going around corners. It was just amazing, just one of the most wonderful experiences you can have riding a bike. तो थोड़ा सा कोशिश करना हिंदी में, थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होता है लोगों को। My Hindi is not that great, हाँ, so वो थोड़ा ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं चीजों को। so yeah, so Kerala में biking is a बहुत अच्छा experience है। So yeah, so I've done two or three road trips, 2-3 road trips करे मैंने इसमें, long road trips, but अभी mostly मैं इसको सिटी में ही चलाता हूँ। सर ये ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए की पड़ती है, ऑलमोस्ट ना करते हुए। तो सर 12 लाख रुपए क्या इस बाइक के लिए वर्थ है सर? I mean if you have to weigh worth versus passion. अच्छा। So to me, yes.
अच्छा यस। And it's not 12 liters. I think it's around 15. I think this one is cost on road around 15. अभी सर हाँ उस टाइम पे जब मेरे कुछ पुराने रेट याद है कि वो 12 के आसपास पड़ती थी, अभी जो शायद But ये yeah, I mean it's 15 लाख की हो गई है सर ये हाँ 15 लाख रुपए की हो गई है हाँ सर। 15 लाख तो बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर भी लोग उसको ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी लोग इसको बाय करते हैं, लेते हैं जो पैशनेट है, क्योंकि जो उसकी लुक्स है सोबर, सिंपल, कूल, क्लासिक। I think a classic bike. It's a classic bike. It's a well engineered bike. It's a well finished, well put together bike. It's worth it. I think for जो power मिलता है इस बाइक से, जो परफॉर्मेंस है, I think is worth it. सर 350 के बाद इस पे अपग्रेड करने में डराया नहीं इस बाइक को आपने, मतलब इस बाइक ने आपको नहीं. कभी नहीं डराया? क्या बात है सर, उसका And टॉर्क। believe it or not, I'm a new biker. I learned to ride this bike in 2021. ओके So I've learned to ride a bike in 2021, and now it's been what 3.5 years I'm riding a bike. तो So कैसे एक्सपीरियंस है सर, बाइक चला के कैसा लगा? I think I'm a convert. You know, I never thought that I would be a biker, but now all I can think about is when is my next ride. ओके मतलब डेली प्लानिंग होती रहती है, ग्रुप में भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट प्लान कब कर रहे हैं। सो इस बाइक की सर कोई अच्छी बात है आप प्लीज बताइए। I think it's the power. I think it's the effortless power. I think at any revs, any engine RPM, any speed, you know, you just turn the throttle and the bike has power. You know, it's one of the most wonderful. This 1200 engine is one of the most wonderful engines I think in the biking world nowadays. You know, सर बहुत स्मूथ है, बहुत ये रिफाइंड, बहुत रिलायबल जगह भी है। ट्रायम्फ यूज करते हैं। आई थिंक ट्रायम्फ अपने आई थिंक 3-4 अभी 5-6 बाइक्स में यूज करने जाते हैं। स्क्रैम्बलर में यूज करते हैं, बिल्कुल। द स्ट्रीट ट्विन, द स्पीड ट्विन, Speed Twin, Tiger हो गया। स्पीड मास्टर, बॉबर, आई थिंक एवरीवेयर ये 1200 इंजन यूज करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इंजन। अच्छा, आपने स्पीड मास्टर के बारे में नहीं सोचा या ऐसा कुछ, मतलब कोई यही स्पेसिफिक क्यों पसंद आई सर? But number one, it's a Bonneville, and secondly, the Speedmaster. But I think it's very low. I think I think it's a very low bike. Ground so clearance it has ground clearance issues. So it limits your options of where you can go, where you can take it. बहुत लोग तो इसको लद्दाख भी लेके जाते हैं। हाँ सर, मेरे ग्रुप में है सर विनय पॉल सर है, उसको लद्दाख ले गए, वो ऑलमोस्ट 60 प्लस है और वो लद्दाख लेके जा चुके हैं इस बाइक को और बहुत अच्छा चला चुके हैं। उनकी जो बाइक थी मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे लोडेड बाइक में से एक है वो। उन्होंने करंटली अभी सोच करके GS ली है। सो और सर इसकी बेकार चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती हो कि यार ये विशाल ये चीज़ इसके अंदर सॉल्व हो जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ? Not really. I think the biggest problem is bike में I think the seat का profile change करना चाहिए। I think the seat profile is a bit uncomfortable for long rides. क्योंकि सर 50 किलोमीटर के बाद में प्रॉब्लम करने लग Yeah, जाती so I think but it's not meant to be a long distance cruiser. So but yeah, वो I think अगर ये seat का profile अगर fix कर पाए, I think that would be one good thing. And I think the tank capacity, I think the amount of इसका जो fuel economy है और जो रेंज है that's not very much. सर मेरे ग्रुप मेरे नोन में एक अरुण भैया है, उनके पास ये सेम बाइक है पुराने वाला मॉडल, वो तो सर इसे 25 से प्लस का एवरेज निकालते हैं। वो he must be a very circumspect rider, so I think the throttle I twist the throttle a bit more, but no, I think the range is a problem. But I think if they can squeeze some more liters into the petrol tank, I think that'll be good. और मेरी नज़रों में सर ये बाइक ना मेंटेन करना बहुत इजी है, इस बाइक को बहुत रिलायबल प्रोडक्ट है ये ट्रायम्फ का, और शुरू से लेके आज तक चल रहा है और आगे भी चलता आ रहा है। Yeah, I think Bonneville ये product जो उन्होंने बनाया है, I think is one of their best products. I think Triumph, जो engine का जो reliability है, जो power है, the fit and finish of the bike. फिट एंड फिनिश तो ट्रायम्फ की शुरू से अच्छी लगी है। अब ये पूरा पेंट देख सकते हैं कितना क्लीन है, कोई मतलब लाइनिंग भी देख सकते हैं कितनी स्मूथनिंग से बनाई हुई है। तो ये T120 ब्लैक है, ब्लैक एडिशन है, तो ये इसमें क्रोम नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी आपको। और इस एक चीज़ मैंने जैसे नोटिस कर रहा हूँ सर, मैंने अभी नज़र पड़ी, इसमें ब्रेम्बो के कैलिपर आ गए। हाँ, इसमें ब्रेम्बो है। इसमें भाई ये these are not the Stylimas. I think जो Stylima जो हाँ वो तो सर उसमें आते हैं, बट इसमें भी नहीं आते थे ये मेरे हिसाब से। आई एम नॉट श्योर, ये स्पीड मास्टर में शायद थे बट T120 में ही नहीं थे। मुझे ये तो पता नहीं पुराने सर पहली वाली में नहीं थे, बट इसमें अभी ब्रेम्बोज आते हैं। हाँ, और इसमें आपने सर सम गार्ड लगवाया है? सम गार्ड लगवाया मैंने। अच्छा, सम गार्ड लगवाया है। So इसमें the only accessories I put is the engine guard, the sum guard and the my charger. हाँ, ये चार्जर सर, ये चार्जर का क्या है, मतलब मेरे को इसके बारे में क्रेविंग होती जानने के लिए। पॉडलॉक तो सर ये कितने का पड़ता है ऑलमोस्ट? I think इसमें 3 pieces आते हैं। One is the clamp. अच्छा। Then you have to put the this dampener, vibration dampener, and this is the wireless charger. So I think it total cost you around maybe 12,000-13,000 bucks. आपको इस वर्थ
Yeah, it's worth it. It's very, it's very easy to put. हम्म You you can just clamp it and you can charge the phone on the go. ओके So I जैसे think मैं it's देख रहा हूँ उस पर नी पैड आपने लगाया हुआ है नहीं, ये तो I think came with the bike. जैसे केम विद द बाइक Yeah. पहले नहीं आता था ये चलो एटलीस्ट कुछ तो दे रहे हैं क्या कुछ तो दिया, चलो. कुछ तो दिया, They कुछ took तो out the heated grips and give us knee pads. नी पैड दिए बट हीटेड ग्रिप का दुख तो है सर ये ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास आती है तो ये चीज़ तो है बाकी ऑल ओवर इतना ही तो सर मतलब मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं इस बाइक को लेके एटलीस्ट No, I think I'm very happy with both bikes. I know I've got 2 Triumphs, but I'm very happy with both bikes. सर I इन have no दोनों की complaints. बाइकों के बाद नेक्स्ट बाइक कौन सी होने वाली है Probably the BMW R1300. R1300 तो गाइस कोई अगर सेल कर रहा हो विद अ गुड प्राइस तो हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर है प्लीज कांटेक्ट कर सकता है अब प्लान नहीं है बट मे बी देख सकते हैं कोई बढ़िया Yeah, I don't think they'll be for sale. बिल्कुल बिल्कुल सो डन है सर थैंक यू सो मच सर टेक केयर Thank you. Cheers.